बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर्स सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक canterpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publisher video session. Today's lecture is from Science of Grade 8 and the chapter which is under discussion is chapter 4, that is about pollutant and their effects on environment. It's our last lecture from this chapter. By the end of this chapter, we'll end up with our first term. The chapter, up till now you have studied all the pollutants that are polluting our environment. Then we have discussed the adverse effects of human activities. We identified the human activities that are polluting the environment severely. And now we are going towards the solution. We'll study the possible remedies, possible activities that can help us to save the earth from these adversities we studied before. And the SLO that will be achieved through this lecture are: explain the importance of local and global conservation of natural resources, as well as suggest ways in which individuals, organizations and government can help to make earth a better place to live. We'll study and explore the activities that are concerned with saving the earth and making it a better place to live in. Two of such activities are local and global conservation and the campaigns on the individual levels as well as organizational and governmental level that can help to make earth a better place to live on. So start our lesson. First of all, page 58 open कीजिए and you will find the lesson 4.11, importance of conservation of natural resources. The very first action, the very first activity that we must need to adopt is to conserve our natural resources. We studied or discussed in our previous lecture that natural resources are on the line of depletion. They are fastly moving towards the depletion or because of their excessive use. So it is need of the hour that we conserve these natural resources. We save our water bodies from pollution. We save our land from pollution, from destruction, from erosion and other adversities. So यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये पूरे का पूरा पैराग्राफ और पूरे का पूरा पेज ज़ुबानी याद करें. You just need to understand what the lecturer is going to make you understand and what is the demand of SLO. Demand of SLO is just to make you understand and you help to understand why the conservation of natural resources is important. Why should we do that and on which level we can do that. So you just need to grasp the concept and then reproduce in your own words. I again repeat, you are not required and demanded to cram all these words and lines. Just take the concept and reproduce it in your own words. The sustainability is the wise use of natural resources available on earth. If we do not adopt the sustainable use of these natural resources, they would be vanished from earth. अगर हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का वाइज यूज़ नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाएंगे. Therefore, their conservation is a major challenge for all mankind. Conservation consists of protection and balanced use of these natural resources. Conservation का मतलब ये है कि एक तरफ तो हम इनकी हिफाजत करें और दूसरी तरफ इनका एक्सेसिव यूज़ ना करें बल्कि इनका बैलेंस्ड यूज़ करें ताकि ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल हो सकें. अगर हम तमाम का तमाम कोयला अभी इस्तेमाल कर लेंगे तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एनर्जी रिसोर्स में क्या रहने देंगे.
अगर तमाम नेचुरल गैस, तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर हम अभी इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स क्या यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए। सो एक तरफ तो हमें इनकी हिफाजत करनी है कि हमें इनको ख़राब नहीं होने देना, हमें इनको वेस्ट नहीं करना, दूसरी तरफ हमने इनका वाइज यूज़ करना है ताकि वो हमारी नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल हो सकें। It also takes the human utilization of these resources under consideration. It also requires that non-renewable resources should be replaced with renewable energy resources. और इसका एक बेस्ट यूज़ ये है कि हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की जगह रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करें, जैसा कि कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस की जगह विंड पावर यूज़ करें, सोलर पावर यूज़ करें, थर्मल पावर यूज़ करें, जियोथर्मल एनर्जी यूज़ करें, अपने तमाम ट्रांसपोर्ट को सोलर पावर पे शिफ्ट करें ताकि हम अपना बहुत सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेव कर सकें। अदरवाइज द होल अर्थ एटमॉस्फेयर विल बी पोल्यूटेड एंड डिवॉइड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन नियर फ्यूचर। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्द हम इन रिसोर्सेज से महरूम हो जाएंगे। दिस विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, और अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ इससे सफ़र करेगी। जब हमारे पास एनर्जी ही नहीं होगी, जब हम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकेंगे, जब हमारी फैक्ट्रीज़ में ईंधन ही नहीं होगा जलाने के लिए, तो हम मैन्युफैक्चरिंग क्या करेंगे। अगर एक सीमेंट इंडस्ट्री को कोयला ना मिलेगा, तो गैस नहीं मिलेगी, तो वो कैसे सीमेंट प्रोड्यूस करेगी। अगर सीमेंट नहीं बनेगा तो हम अपनी कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकेंगे। सो ये सब वो सोचने की बातें हैं और इन पर अमल करने की ज़रूरत है कि हम अपने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के साथ शिफ्ट करें। सो वी कैन से दैट कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट्स वेरी ट्रू कि हमारी लाइफ इन रिसोर्सेज की कंजर्वेशन पे डिपेंड कर रही है। ये कंजर्वेशन दो लेवल्स पे हो सकती है, एक तो लोकल लेवल पे हो सकती है और एक ग्लोबल लेवल पे। लोकल लेवल में इंडिविजुअल्स आ जाते हैं और गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, और ग्लोबल लेवल पे ओवरऑल वर्ल्ड आ जाती है कि हम लोकल लेवल पे भी यानी अपनी नेशनल पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं, हर इंडिविजुअल इस तरह के काम करे कि वो एनर्जी को कम से कम वेस्ट करे। और ग्लोबल लेवल का मतलब क्या है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ऐसी एक्टिविटीज़ अडॉप्ट की जाएं, ऐसे पैरामीटर्स बनाए जाएं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए अपना रोल प्ले करें। सो पहले देखते हैं कि लोकल कंजर्वेशन का क्या मतलब है। द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन लोकल कम्युनिटी इज अ चैलेंज फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देयर इज नीड फॉर देम टू कंडक्ट लोकल अवेयरनेस कैंपेन्स, एडवर्टाइज द फैक्ट्स एंड यूज पैम्फलेट्स एंड न्यूज एजेंसीज टू स्प्रेड द वर्ड्स। यानी हम लोकल लेवल पे किस तरह कंजर्व कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस कॉज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैम्फलेट्स यूज़ करें, मीडिया यूज़ करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया यूज़ करें, लोगों को अवेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में कि वो एनर्जी रिसोर्सेज को वाइजली हैंडल करें। द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड कंडक्ट सेशंस फॉर द कम्युनिटीज़ वेयर दे आर राइटली गाइडेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लोकल गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बैन द एक्सेसिव यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, और अवेयरनेस कैंपेन्स किसके थ्रू होनी चाहिए, पैम्फलेट्स के थ्रू, न्यूज़ एजेंसीज के थ्रू, मीडिया के थ्रू, ताकि एक मैसिव लेवल पे मैसेज कन्वे किया जा सके। और दूसरा इसमें क्या स्टेप लिया जा सकता है कि लोकल गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ से जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज़ करते हों। अब ग्लोबल लेवल मतलब वर्ल्ड वाइड। द ग्लोबल कंजर्वेशन इज एसोसिएटेड विद लोकल कंजर्वेशन। लोकल कंजर्वेशन सपोर्ट करती है ग्लोबल कंजर्वेशन को। इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, नेशनल लेवल एक्टिविटीज़ ओवरऑल पार्ट बनती हैं ग्लोबल एफर्ट्स का। Once the nations are able enough to conserve the natural resources, they should also join hands to contribute the same on global level. अगर हम अपने मुल्क में ही एनर्जी रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ नहीं करते, उन्हें कंजर्व नहीं कर पाते, तो हम ग्लोबल लेवल पे भी रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपने लोकली ऐसी एक्टिविटीज़ अडॉप्ट नहीं करते, ग्लोबल स्टेप्स का, ग्लोबल प्रिकॉशंस का भी हम ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सो हमें पहले इंटरनली खुद को ऐसे स्टेप्स की तरफ लेके जाना है जो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें। द यूजेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी बैंड। नो फॉरेन ट्रेड ऑफ दीज एनर्जी रिसोर्सेज शुड बी अलाउड। ये सेकेंड स्टेप है इसका। पहला था कि बैन किया जाए, दूसरा स्टेप है कि नॉन फॉरेन ट्रेड को बैन किया जाए।
द डेवलप्ड कंट्रीज शुड ज्वाइन हैंड्स टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज को मिल के काम करना चाहिए। जो कंट्रीज नॉन कंजर्वेशन कर चुकी हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, उन्हें अपने आइडियाज़ को, अपनी पॉलिसीज़ को फ्लोट करना चाहिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ, ताकि वो भी इनके एक्सपीरियंस से बेनिफिट ले सकें। Once this issue will be resolved from developing countries, the same will go on to the underdeveloped countries. So there is a serious need for the world to sit at a platform and conserve the natural resources. जब डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज मिलके काम करेंगी तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनमें बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हो सकी है, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगी। सो हर यूनिट को ना सिर्फ अपने बिहाफ पे बल्कि एक दूसरे की मदद करते हुए नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज ओवरऑल वर्ल्ड का एसेट हैं। दूसरा तरीका अर्थ को बेटर प्लेस बनाने का क्या है कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करें, कि जो हमारा इतना सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूज़फुल तरीके से मैनेज किया जाए, उसे यूज़फुल तरीके से डिस्पोज किया जाए, उसे यूज़फुल तरीके से रीयूज़ के काबिल बनाया जाए। और तीसरा तरीका इसमें यह है कि रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल की जाए, कि जो मटेरियल्स दोबारा इस्तेमाल के काबिल हैं उनको दोबारा इस्तेमाल किया जाए ताकि वेस्ट कम से कम जनरेट हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो उस प्रोसेस के मुतल्लिक है कि वेस्ट जनरेट हो चुका है, अब उसे डिस्पोज कैसे किया जाए, ये उन स्ट्रेटजीज़ के मुतल्लिक है। और रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल ये है कि वेस्ट को प्रोड्यूस होने से कैसे रोका जा सके। हमारी बहुत सी चीज़ें, प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन्हें हम दोबारा किसी न किसी फॉर्म में काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, तो जब उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है तो क्यों ना उन्हें इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम उन्हें कम से कम डस्टबिन की नज़र करें। और इस तरह जब वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा तो उसका डिस्पोजल भी हमें डिस्पोजल के लिए भी कम एफर्ट्स उठाना पड़ेंगे। तो देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द कलेक्शन, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड मटीरियल्स दैट इज डिस्कार्डेड एज गार्बेज बिकॉज इट हैज़ सर्व्ड इट्स पर्पज़। कोई भी चीज़ जो अपना पर्पस सर्व कर चुकी है और वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं हो सकती, उसको इकट्ठा करना, उसकी ट्रीटमेंट इस तरह से करना कि वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना रहे, और उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना कि वो आने वाले वक्त में एनवायरनमेंट को किसी तरह से थ्रेटन ना कर सके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। The disposal of this solid waste can create unhygienic conditions and ultimately lead to pollution of the environment. जब सॉलिड वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो पोल्यूशन कॉज करेगा। आप अपने घर में ही देख लीजिए कि अगर कूड़ा करकट को डेली, रोज़मर्रा के कूड़ा करकट को, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल के पील्स शामिल है, जिसमें पौधों के पत्ते शामिल है और दूसरा वेस्ट शामिल है, अगर उसे प्रॉपरली डिस्पोज ना किया जाए तो वो किस कदर पोल्यूशन कॉज करता है, वो किस कदर एक बैड ऑर्डर कॉज करता है, और वो किस कदर बीमारियां फैलाने का बायस बनता है, वो किस कदर मच्छरों का और मक्खियों की और दीगर बीमारियों का बायस बनता है। सो जब आप इमेजिन करें कि एक नेशनल लेवल पे वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उस वेस्ट, इतने मैसिव स्केल पे वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाएगा तो वो हम ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए किस तरह से ख़तरनाक होगा। It also causes diseases like cholera, dysentery वगैरह। All the different types of solid domestic waste should be put in the separate containers. For example, the peels of vegetables and fruits or eatables should be in a separate container that can be easily used as biofertilizer for our crops. Plastics, papers, cans should also be discarded in different cabins. अब इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टैंडर्ड बनाया गया है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिन रखी गई है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि प्लास्टिक के लिए रेड कलर की बिन है, पेपर के वेस्ट के लिए ब्लू कलर की बिन है, और वो वेस्ट जिसे रिसाइकल किया जा सकता है, जैसा कि वेजिटेबल पील्स हैं, जैसा कि फ्रूट पील्स हैं, जैसा कि कुछ और इसी तरह के ईटेबल्स हैं, बचा कुछ खाना है जिसे हम किसी तरह से फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या नेचुरल मैन्योर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए येलो कलर की बिन है। सो यहाँ भी पाकिस्तान में भी ये प्रैक्टिस
अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि हम एक मखसूस वेस्ट को मखसूस जगह पे इकट्ठा करें ताकि उसका डिस्पोजल ईजी हो सके। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जिन्हें रिसाइकल किया जा सकेगा। सो अगर प्लास्टिक का वेस्ट एक जगह पे हमारे पास इकट्ठा होगा तो हम उन्हें ईजिली रिसाइकलिंग की तरफ ले जाएंगे। पेपर वेस्ट को भी रिसाइकिल किया जा सकता है अगर वो हमारे पास इकट्ठे फॉर्म में एक अलग तरीके से मौजूद हो। लेकिन अगर ये तमाम तरह का वेस्ट एक ही जगह पे मौजूद होगा, मिक्सअप होगा, तो हमें उन्हें सेपरेट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, लेबर चाहिए, और यह भी हो सकता है कि वो प्रॉपर तरीके से सेपरेट भी ना हो सके। तो जब एक वेस्ट प्रॉपर तरीके से सेपरेट ही नहीं हो सकेगा तो हम इसकी यूटिलाइजेशन रीयूटिलाइजेशन या वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकेंगे। सो इट इज़ नीड ऑफ द आवर दैट वी अडॉप्ट द प्रैक्टिस that is being practiced at wide scale on international level to separate the waste into separate bins. That's how we can manage our waste. Next comes the recycling of material. It is a very, very important activity to produce less waste. एक चीज़ को जब हम बार बार इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली वो उसका प्रोड्यूस नहीं होगा और हमारे बहुत से पर्पसेस सर्व होते चले जाएंगे एक ही चीज़ से। रिसाइकलिंग इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये एक 3R स्ट्रेटेजी होती है एनवायरनमेंट की क्लीनिंग के लिए कि एक तो रिड्यूस, ऐसी चीज़ें यूज़ ही ना करें जिन्हें हम वेस्ट जिनको हम कम इस्तेमाल कर सकें या उनका ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो। और अगर ऐसी चीज़ें कुछ हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनको बार बार इस्तेमाल किया जाए, एक दफ़ा इस्तेमाल करके इनको वेस्ट ना कर दिया जाए और इनको रिसाइकल किया जाए। यानी अगर हम ग्लास की एक बॉटल है, ग्लास की कार्बोनेटेड ड्रिंक की एक बॉटल है जो कि ग्लास की बनी हुई है, ड्रिंक्स तो हमने यूज़ कर ली, अब बोतल को वेस्ट करने की बजाय उसमें हम पौधे उगा सकते हैं, उसको किसी डेकोरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये रिसाइकलिंग है कि किसी एक चीज़ का यूज़ ख़त्म होने के बाद उसे किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना। सो रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। Recycling is a process of conversion of waste materials into the new useful materials. अभी हमने ग्लास बॉटल की एग्जांपल ली कि कार्बोनेटेड ड्रिंक यूज़ करने के बाद उसको वेस्ट ना कर दिया जाए बल्कि उसको किसी और एक्टिविटी में यूटिलाइज किया जाए। उसमें पौधे उगाए जा सकते हैं, इसके साथ कोई डेकोरेशन डॉल बनाई जा सकती है या किसी और तरह से इसे यूटिलाइज किया जा सकता है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू ओल्ड मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। इस तरह हमारा वेस्ट डिस्पोजल भी ईजी हो जाएगा। This can save the material and help in lowering the amount of greenhouse gas emissions. Recycling is beneficial for balanced energy usage and for reducing the air and water pollution. इस तरह हमारी एयर और वाटर पोल्यूशन भी कम से कम प्रोड्यूस होगी। Papers, metals, cardboard, plastic and glasses are the products that are mostly recycled and reused. आपके सामने एक लिस्ट दी गई है उन प्रोडक्ट्स की जिनको हम रिसाइकल और रीयूज़ कर सकते हैं। पेपर को, प्लास्टिक को, कार्डबोर्ड्स को, मेटल्स को, ग्लास को। इस तरह हमारा डस्टबिन ज़्यादातर एम्प्टी ही रहेगी जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत एक अच्छी बात है। नेक्स्ट कम्स द एनवायरमेंटल कैंपेन्स कि हम कैसी कैंपेन्स इनिशिएट करें कि वो लोगों में अवेयरनेस भी पैदा करें अपनी अर्थ को सेव करने के लिए भी, और उनको फोर्स करें कि वो लाजमी तौर पे ऐसे एक्ट्स अडॉप्ट करें जो अर्थ को सेव कर सकते हैं पोल्यूशन से। देयर इज़ अ नीड फॉर द लोकल गवर्नमेंट टू कंडक्ट एनवायरमेंटल कैंपेन्स। ईच कैंपेन शुड बी लेड बाय द पैनल ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल वर्कर्स, पॉलिटिकल पर्सन्स एंड वॉलंटियर स्टूडेंट्स। ये तमाम लोग किसी भी एनवायरमेंटल कैंपेन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। देयर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट शुड बी टू अवेयर द लोकल कम्युनिटीज़ अबाउट सेविंग द प्लैनेट अर्थ। हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको लोगों को अवेयर कर सकते हैं, प्लेकार्ड्स की मदद से, बैनर्स की मदद से, पोस्टर्स की मदद से, वीडियोस की मदद से और लाइव एग्जांपल्स के थ्रू भी, सक्सेस स्टोरीज बता के कि किस तरह लोगों ने अपने वेस्ट को मैनेज किया, अपने एनवायरनमेंट को सेव किया और आजकल वो इन एक्ट्स की बदौलत किस तरह के फ़ायदे इंजॉय कर रहे हैं।
अब इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वन थिंग इज टू रिमेंबर दैट दिस अर्थ इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन, इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस. It is the responsibility of all individuals, organizations and governments to make it a better place to live. यानी ये हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी भी एक ख़ास फर्द की मलकियत नहीं है. सो हम में से हर शख्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए अर्थ को सेव करने के लिए, बिकॉज इट इज़ अवर होम. द फर्स्ट ड्यूटी इज़ ऑफ गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द एनवायरमेंटल लॉज. गवर्नमेंट की सबसे पहला फ़र्ज़ है कि वो एनवायरमेंटल लॉज को इन्फोर्स करें. Second duty is of local organizations to spread the word, to aware the communities and to enforce these laws within communities. अब लोकल कम्युनिटीज़ जैसे कि NGOs वगैरह हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं और इस तरह के दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें कि कैसे वो अपने वर्ड को सेव कर सकते हैं. और थर्ड लेवल पे इंडिविजुअल्स आते हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ भी और इन लोकल कम्युनिटी के साथ कोऑपरेट करें ताकि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें. These are the three pillars to sustain the world. अगर ये तीनों स्टेजेस यानी गवर्नमेंट, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स मिलकर काम करते हैं तो हम एक सक्सेसफुल एनवायरमेंटल कैंपेन रन करके अपनी एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं. विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ अ सिंगल एंटिटी द वर्ल्ड वुड नेवर बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन. अगर इनमें से किसी एक एंटिटी का भी कोऑपरेशन ख़त्म हो जाए तो हम अपने एनवायरमेंटल सेविंग प्रोजेक्ट के टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते. सो हम सबको अपने अपने लेवल पे अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए. ये तो था हमारा आज का लेक्चर. अब हम आते हैं होमवर्क की तरफ. होमवर्क सबसे पहले करेंगे टेस्ट एक्सरसाइज 2 से, पेज 61 और 60 से. पहला सवाल है टेस्ट एक्सरसाइज 2 का कि आपने सही जवाब के दायरे को फिल करना है और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. चूज़ द करेक्ट 3R स्ट्रेटजी सीक्वेंस. 3R स्ट्रेटजी जो हमने पढ़ा था उसका सीक्वेंस बताना है. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने इनमें से राइट सीक्वेंस को फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 5 है द सोल्यूशन टू सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इज. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का सोल्यूशन क्या होगा? 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस आप फाइंड करेंगे. पार्ट बी की तरफ आइए. पार्ट बी में से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. क्वेश्चन नंबर 3 है सेविंग द प्लैनेट अर्थ इज मैंडेटरी ऑन बोथ लोकल एंड ग्लोबल लेवल. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. यानी से अर्थ को एक सेफ प्लैनेट बनाने में लोकल बॉडीज़ और ग्लोबल बॉडीज़ इनका क्या रोल है और ये क्यों मैंडेटरी है, क्यों लाजमी है, वो आपने बताना है. फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन करनी है आपने सवाल नंबर 4 में. सवाल नंबर 5 है कि रिसाइकलिंग इज बेस्ट वे टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी. रिसाइकलिंग इज द बेस्ट वे टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी की तरफ रिसाइकलिंग, सस्टेनेबिलिटी के लिए रिसाइकलिंग एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है. कैसे, वो आपने बताना है. अब आ जाइए रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ. रिव्यू एक्सरसाइज में से आप पार्ट ए से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे. रिडक्शन इज पोल्यूशन इज द ओनली पॉसिबल थ्रू. अब पोल्यूशन में रिडक्शन कैसे हो सकती है? इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज, कटिंग डाउन मोर ट्रीज, एस्टैब्लिशिंग मोर इंडस्ट्रीज. इनमें से जो भी करेक्ट आंसर है आप उसका सर्कल फिल करेंगे. पार्ट बी देखिए जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसरिंग रिक्वायर्ड है. यहाँ से आप सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट एनवायरमेंटल कैंपेन्स इन सेविंग द प्लैनेट अर्थ. ज़मीन को, प्लैनेट अर्थ को सेव करने के लिए एनवायरमेंटल कैंपेन्स का क्या रोल है? पार्ट सी देखिए. पार्ट सी से आप क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करेंगे. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल एंड ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सजेस्ट द ways in which individual organization and government can help to make earth a better place to live in. और फिर 11th क्वेश्चन में एक आपको सिचुएशन बताई गई है, आपने उसे एनालाइज करके आंसर करना है. इन पाकिस्तान समर सीजन हैज़ बिकम मोर इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड. पाकिस्तान में समर सीजन ज़्यादा इंटेंस हो चुका है. व्हाट पॉसिबल फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट दिस चेंज. क्या वजूहात हो सकती हैं? ऑल्सो सजेस्ट सम रेमेडियल मेजर्स. आपने उसका सोल्यूशन भी बताना है. फिर होम असाइनमेंट है आपकी. Choose 2 alternative energy sources and explain at least 2 advantages and 2 disadvantages of these alternative energy resources in comparison to fossil fuel energy resources. आप 2 renewable energy resources लेंगे, उनके advantages और disadvantages बताएंगे, उनका comparison करेंगे fossil fuel यानी non renewable energy resources के साथ. How might the use of these alternative energy resources affect the human health. और आपने ये भी बताना है कि इनका human health पे क्या इफेक्ट है.
इसके बाद आप अपना समर पैक देखेंगे पेज 50 पे। यहाँ से आप एक्टिविटी सॉल्व करेंगे 4.9। थिंक अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द कोई जो भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं आप उनको एनलिस्ट करें। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेड योर फीमेल फैमिली डिसाइड टू लिव वेयर यू डू। जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह पे रहने के लिए आपने किन फैक्टर्स को सामने रखा। अपने पेरेंट्स से कंसल्ट कीजिए कि किसी भी जगह पे रहने के लिए कौन कौन से एनवायरमेंटल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और उनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। फिर आप 4.10 एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। गिव एटलीस्ट वन प्रैक्टिसेबल सजेशन एट ईच गिवन लेवल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज आपको बताए गए हैं। आपने हर लेवल पे एक ऐसी सजेशन देनी है जिस पे अमल किया जा सके। इंडिविजुअल लेवल पे लैंड रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। इसी तरह वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए इंडिविजुअल्स का क्या रोल है, ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल होना चाहिए और गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन 2 है नेम अ वे यू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज ईच डे इन स्कूल। आप स्कूल में नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करते हैं। बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके पास, वाटर है, सनलाइट है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सॉइल है, बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज आपके इर्द गिर्द स्कूल में पाए जाते हैं। तो आप उनको स्कूल में कैसे कंजर्व करते हैं वो आपने बताना है। एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज देखें। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ग्लास एंड स्टायरोफॉर्म आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वाटर पोल्यूटेंट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जो भी ये 2 प्रोडक्ट्स हैं आप उनका आंसर फाइंड करके उनकी रीज़न बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है पेज 56 पे, वाई शुड वी कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना चाहिए, इसके लिए आप सजेशन देंगे। यहाँ हम अपना लेक्चर, चैप्टर और टर्म तीनों एंड कर चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड अचीव्ड ऑल द SLOs. Thank you very much.